Hello students, good morning. How are you all? I hope you all are fine. Today I start our today's lecture. Our next sum is example 19. Example number 19. Let capital R be a relation from Q to Q defined by R is equals to in a curly bracket A comma B, where A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z. So our main relation is A minus B belongs to Z. So we have elements A and B, and we have to do a subtraction. That means subtraction of A and B, and which is gives some output, which is gives us some output, and the output must be belongs to Z. So this is our relation. Show that it means we have to prove number one, A comma A belongs to R for all small a belongs to capital Q. Number two, A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R. And number three, A comma B belongs to R and B comma C belongs to R. That implies A comma C belongs to R. So in the last lecture we seen our last example, which is I think miscellaneous exercise second, ninth sum, I think. Yes, same as this sum. Okay students, same as previous sum. If I say is same as previous sum. जो हमने लास्ट सम हमने किया था उसमें जो 3 रिजल्ट है वही यहाँ पे भी है, पर यहाँ पे क्या था, लास्ट एग्जांपल में हमने वेरीफाई किया था कि ये ट्रू है या नहीं. आर द फॉलोइंग ट्रू, मतलब कि तीनों के तीनों रिजल्ट्स फॉल्स हुए, मतलब नॉट ट्रू हुए. यहाँ पे तो क्या है कि शो दैट, मतलब कि तीनों के तीनों रिजल्ट जो हमारा रिलेशन कैपिटल आर है उसके लिए सेटिस्फाई करेगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है. ओके चलो तो अब देख लेते हैं. सबसे पहले firstly I mention the given relation which we have given in our question. So here the relation capital R from Q to Q, where R is equals to in a curly bracket A comma B, where A comma B belongs to Q and A minus B belongs to Z, be given. So that's it, I mentioned it, the given relation. Now we have to prove our 3 result which is true. So let's see. First one, A comma A belongs to R for all A belongs to Q. For all A, where A belongs to Q, A minus A is equals to 0. That means we have to put a small a replaced by B. That means in a second place we replace our small a. मतलब जो हमारा A comma B है हमारा रिलेशन, उसमें जो B है हमारा, उसके प्लेस पर हमें क्या वैल्यू पुट करना है, स्मॉल a ही पुट करना है. इसका मतलब यहाँ पे भी स्मॉल a आएगा, यहाँ पे भी. दैट मीन्स मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे a और यहाँ पे भी a. दैट मीन्स a माइनस a. दैट मीन्स आप कोई भी वैल्यू लेंगे ना, बिलोंग्स टू क्यू है ना, तो आप क्यू में से कोई भी वैल्यू लेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा. और 0 विच इज बिलोंग्स टू अवर जेड, क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स उसमें क्या है, नेगेटिव इंटीजर्स है, पॉजिटिव इंटीजर्स है और 0 है. सो 0 मस्ट बिलोंग्स टू जेड. दैट मीन्स a comma बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल स्मॉल a बिलोंग्स टू क्यू इज ट्रू. Now we move our second result, which is A comma B belongs to R implies B comma A belongs to R. So for all A comma B belongs to Q, we take or we suppose let A comma B belongs to R. First result मैंने suppose कर लिया. अब first result, according to our first result we prove the second result is true. Okay, so ये क्या implies कर रहा है, A comma belongs to R है ना, तो A comma B क्या मतलब हमें क्या दे रहा है, तो A minus B belongs to Z दे रहा है. That implies A minus B belongs to Z. इसका मतलब कि A minus B का जो भी आंसर आएगा ना वो belongs to Z होगा, belongs to Z होगा. बराबर. कैसे, सपोज मैं A is equal to 2 ले लेता हूँ और B is equal to 1, और I take A is equal to 1 and B is equal to 2. So I subtract 1 minus 2, 1 minus 2. That means we get minus 1, which is belongs to Z. Now I subtract from 2 from 1. That means 2 minus 1. So यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा. 2 minus 1 which is 1, which is also belongs to Z. इसका मतलब समझ आ गया स्टूडेंट्स. A minus B जो हमारा फर्स्ट रिजल्ट हमने सपोज किया, बराबर, वो तो बिलोंग्स टू आर है ही, और वो हमें क्या दे रहा है, A minus B बिलोंग्स टू Z दे रहा है. अभी क्या होगा कि हमने A minus B किया, अब हम B minus A करेंगे, मतलब जो प्लेस की इंटरचेंज कर देंगे, आगे पीछे कर देंगे, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो भी बिलोंग्स टू Z ही मिलेगा. अभी मैंने आपको एक एग्जांपल भी देके समझाया. A is equal to 1 और B is equal to 2, बराबर. तो 1 minus 2 करेंगे तो -1 विच इज बिलोंग्स टू Z, और 2 minus 1 करेंगे तो मुझे 1 मिलेगा, वो भी
बिलोंग्स टू जेड ही होगा. दैट इम्प्लाइज बी कॉमा बिलोंग्स टू आर. Therefore, A comma belongs to R implies B comma A belongs to R is true. That means the second result is also true. Now move our third result, which is A comma B belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R. मतलब हमें दो पेयर ऐसे लेने होंगे जो हमारा रिलेशन को बिलोंग करता होगा. तो मैंने ले लिया A comma belongs to R and B comma C belongs to R. Suppose I take 1, 2 and 3. A is equal to 1, B is equal to 2 and C is equal to 3. So 1 minus 2 that means minus 1 which is belongs to Z. यहाँ पे होगा 2 minus 3 which is gives minus 1 which is also belongs to Z. Now I subtract A minus C that means 1 minus 3 that means which is also minus 2 which is also belongs to Z. मतलब आप 1 minus 2 किया तो minus 1 मिला, 2 minus 3 किया तो भी minus 1 मिला. दोनों belongs to Z है क्योंकि दोनों set of integers के मेंबर है. अब मैं क्या करूंगा तो A माइनस सी करूंगा मतलब 1 माइनस 3 करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा आंसर -2 मिलेगा. बराबर ना. विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू क्योंकि हमें बिलोंग टू जेड ही चाहिए ना. आपका जो भी डिजिट मिले बराबर दोनों पहले दोनों में तो -1 मिले. इसका ये जरूर नहीं कि यहाँ पे भी -1 ही मिलना चाहिए पर हमें क्या ध्यान देना है कि बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए. -2 मिला विच इज ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड. देयरफॉर A comma C belongs to Z. सो क्या प्रूव करना था आपको. यही था ना कि therefore A comma belongs to R and B comma C belongs to R implies A comma C belongs to R is true. So यहाँ पे हमने क्या किया तो तीनों के तीनों रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिए. क्या प्रूफ करना था स्टूडेंट्स. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. समझ में आ गया. चलो ओके गुड. सो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 9. अभी हमारा जो नेक्स्ट है वो हमारा लास्ट टॉपिक है हमारा ये चैप्टर का. टॉपिक मतलब एक डेफिनेशन है बराबर और उसके अकॉर्डिंग हमारे पास 3 सम्स है बराबर. डिपेंडिंग ऑन दैट टॉपिक वी हैव रिमेनिंग 3 सम्स. सो लेट सी. ओके नाउ अवर लास्ट डेफिनेशन और लास्ट टॉपिक इज algebra of real functions. Algebra of real functions in which the first definition is addition of two real functions. इसका मतलब हम क्या देखेंगे हमारे पास 2 रियल फंक्शंस होंगे और उस 2 रियल फंक्शंस के हम क्या देखेंगे एडिशन देखेंगे, सब्सट्रैक्शन देखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन बाय ए स्केलर मतलब जो हमारा रियल फंक्शन होगा उसको हम कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमें कैसा दिखेगा वो. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस और क्वोशिएंट ऑफ 2 रियल फंक्शंस का मतलब कि डिवीजन ऑफ 2 रियल फंक्शंस. चलो तो हमारे पास ये 5 डेफिनेशंस है वो हम देख लेते हैं और डिपेंडिंग ऑन दिस डेफिनेशंस वी शो और वी विल सी अवर लास्ट 3 सम्स और 3 एग्जांपल्स. सो फर्स्ट वन इज एडिशन. Let f from x to r and g from x to r be any 2 real functions. So we have 2 real functions f and g. Both domain and codomain will be same. Where x subset r. That means this set is a subset of capital R. Okay. Then we define f plus g. That means addition of 2 real functions is denoted by f plus g from obviously which is from x to r. Obviously क्योंकि हमारा जो f और g का डोमेन और कोडोमेन सेम है तो हम उस दोनों का एडिशन कर देंगे तो वो भी हमारा क्या आएगा तो x टू r वो भी सेम ही होगा. बाय डिफाइन f प्लस जी फ्रॉम x टू r बाय f प्लस जी ऑफ x. मतलब ये f प्लस जी है उसको हम डोमेन पे अप्लाई करेंगे तो हमें f प्लस जी ऑफ x मिलेगा और हम एडिशन का जो रूल है वो क्या होगा तो ये x है बराबर वो दोनों के अप्लाई करेंगे x को भी और g को भी. दैट मीन्स fx प्लस gx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X. तो ये हो गया हमारा एडिशन ऑफ 2 रियल फंक्शंस. कैसे डिफाइन होगा तो f प्लस जी ऑफ x होगा तो उसका आंसर क्या आएगा fx प्लस gx. मतलब जो x है वो दोनों पे अप्लाई होगा f पे भी अप्लाई होगा और g पे भी अप्लाई होगा. ओके. सिमिलरली इफ वी टेक सब्सट्रैक्शन दैट मीन्स यहाँ पे जो प्लस साइन है वहाँ पे क्या साइन आएगा तो माइनस साइन आएगा. बाकी एग्जैक्ट सेम है. सब्सट्रैक्शन ऑफ रियल फंक्शन फ्रॉम अनदर. लेट f फ्रॉम r to r x to r and g from x to r be any 2 real functions where x subset r. Then we define f minus g from x to r by f minus g of x is equal to fx minus gx for all x belongs to r. ये हमारा एडिशन था और ये हमारा सब्सट्रैक्शन. मतलब कि हमारे पास 2 रियल फंक्शंस है f एंड g तो एडिशन क्या होगा तो f प्लस g और सब्सट्रैक्शन क्या होगा तो f माइनस g. उसके बाद मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर. अब हम क्या करेंगे तो हमारे पास एक रियल फंक्शन होगा उसको हम कोई भी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसा मिलेगा
So let's see. Let f from x to r be a real valued function and alpha be a scalar. Alpha be any scalar or alpha be a scalar. Be any scalar. Then the product alpha dot f मतलब कि हमें मल्टीप्लीकेशन बाय स्केलर. मल्टीप्लीकेशन मतलब कि हमारा जो फंक्शन f है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें रिजल्टिंग क्या मिलेगा. रिजल्ट में हमें अल्फा एफ मिलेगा. सो ये रहा हमारा अल्फा एफ. प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लीकेशन. देन द मल्टीप्लीकेशन अल्फा डॉट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू आर. अगर तो भी हमारा फंक्शन तो एक्स टू आर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा. बराबर ना. सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, तो कोई स्केलर के साथ सिर्फ मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं ना. बराबर. मल्टीप्लाई करने से हमारा जो डोमेन और कोडोमेन है वो चेंज नहीं होगा, वो वैसा है कि वैसा ही रहेगा. डिफाइंड बाय अल्फा एफ ऑफ एक्स. मतलब ये जो हमारा अल्फा एक्स है उसको हम एक्स पर अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अल्फा एफ ऑफ एक्स. और उसका आंसर हमें क्या मिलेगा, जो स्केलर है वो बाहर जाएगा और जो हमारा एफ है वो हमारा एक्स के साथ एंटर हो जाएगा. मतलब अल्फा इंटू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड हमारा मिलेगा. फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. ओके. सो ये हो गया हमारा मल्टीप्लीकेशन बाय अ स्केलर. मतलब अल्फा एफ ऑफ एक्स होगा तो अल्फा बाहर निकल जाएगा और एफ एक्स हो जाएगा. मतलब ये होगा. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. अल्फा इंटू एफ एक्स. ये तो किसी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका रिजल्ट है. मैं सभी को बॉक्स आउट कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. सिंपल. ये हमारा पहला डेफिनेशन था. उसके बाद ये हमारा दूसरा डेफिनेशन था. उसके बाद ये हमारा तीसरा था फॉर्मूला. और फिर उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस. अब हम क्या करेंगे, तो टू रियल फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन लेंगे. जो हमने फर्स्ट सेकंड देखा सेम वैसा ही है. द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल फंक्शंस एफ फ्रॉम एक्स टू आर एंड जी फ्रॉम एक्स टू आर इज अ फंक्शन एफ जी. बराबर. मतलब हमारे पास दो रियल फंक्शंस है एफ एंड जी. अब हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ जी मिलेगा. तो एफ जी का भी जो डोमेन और कोडोमेन क्या होगा, तो जो एफ और जी का है वही होगा सेम. फ्रॉम एक्स टू आर डिफाइंड बाय एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू इंडिविजुअल एक्स हमें देना है. मतलब एक्स हमारा एफ पर भी अप्लाई करना है और जी पर भी अप्लाई करना है. मतलब हमें क्या मिलेगा, एफ जी इंटू एफ एक्स इंटू जी एक्स. तो ये हो गया हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला. समझ में आ गया. फर्स्ट में क्या देखा हमने, एडिशन, यहाँ सब्सट्रैक्शन और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन. और इंडिविजुअल हमने एक्स दे दिया. यहाँ पे डॉट का जो था, ये डॉट हमारे बीच में था, वो यहाँ पे आ जाएगा. ओके. तो ये हो गया हमारा एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स मल्टीप्लीकेशन. अब हम क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शंस, इसका मतलब हम डिवीजन ऑफ टू रियल फंक्शंस देखेंगे. चलो. लेट एफ एंड जी बी एनी बी टू रियल फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू आर. मतलब हमारे पास दो रियल फंक्शंस है, एफ फ्रॉम एक्स टू आर एंड जी फ्रॉम एक्स टू आर. द क्वोशिएंट ऑफ एफ एंड जी और डिवीजन ऑफ एफ एंड जी डिनोटेड बाय एफ बाय जी. डिवीजन करना है एफ बाय जी मतलब क्वोशिएंट इज अ फंक्शन डिफाइंड बाय एफ बाय जी ऑफ एक्स. सिमिलर. अब हमें क्या करना है, एक्स है ना, और न्यूमरेटर में एफ को भी अप्लाई करना है और डिनोमिनेटर में जी को भी अप्लाई करना है. मतलब एफ एक्स बाय जी एक्स. तो ये हो गया हमारी लास्ट फॉर्मूला. वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो. ऑब्वियस है ये तो कंडीशन, ऑब्वियसली कंपल्सरी आपको लिखना ही है क्योंकि हमारे डिनोमिनेटर मस्ट बी नॉन जीरो. इफ इट इज जीरो देन देयर इज अ लाइक अ क्या होगा, तो धड़ाके होंगे, फटाके फूटेंगे. कौन से फूटेंगे, तो इन्फिनिटी के फूटेंगे. सो दैट्स व्हाई जी ऑफ एक्स इज नॉट इक्वल टू एंड एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स. सो आई होप कि आपको ये पांचों के पांचों डेफिनेशन समझ में आ गए होंगे. एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, क्वोशिएंट एंड मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर. ओके. ये फॉर्मूलाज सभी इंपॉर्टेंट है. बराबर. ये फॉर्मूला आपको प्रॉपरली समझना होगा. बराबर. क्योंकि इसका यूज हम 12 में भी करेंगे, 12 में भी आएगा इसलिए. ओके. 12 में भी हमारा चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शन. सो उसमें भी इसका यूज आएगा. सो आप ये सभी डेफिनेशन प्रॉपरली देख लीजिए. ओके. आई होप कि आपको समझ में आ गया. ओके स्टूडेंट्स. That's it students. So our last third sum that means इसके बाद हमारे पास अब दो सम बाकी है. हमारा चैप्टर कंप्लीट होने वाला है अभी. ओके. सो क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 16. लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स इज इक्वल टू 2x plus 1 be two real functions. Find f plus g of x, f minus g of x, f g of x and f by g of
x, मतलब हमारे वी हैव टू फाइंड 4 results which we already just we seen the definitions of these 4. So firstly I mentioned the given two functions, which is here fx is equal to x square and gx is equal to 2x plus 1 be given real function. So मैंने मेंशन कर दिया और उसको रिजल्ट नंबर 1 और 2 दे दिया. सबसे पहले मैं टाइटल दूंगा फर्स्ट f plus g of x. By the definition of addition of two real functions we may write इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, मतलब एक्स यहाँ पे एफ को भी और जी को दोनों को अप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा एफ एक्स प्लस जी एक्स. दोनों की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, क्या है तो एफ एक्स के एक्स स्क्वायर है और जी एक्स के 2x प्लस 1 है. तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया, देख सकते हैं फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2. सो ये हो गया हमारा क्या तो के एफ प्लस जी ऑफ एक्स का आंसर. सिमिलरली हम क्या करेंगे सब्ट्रैक्शन के नंबर 2 एफ माइनस जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स. वी नो द डेफिनेशन ऑफ subtraction of two real functions. So we may write or now we put the values of fx and gx in here. That means fx is equal to x square minus gx is equal to x plus 1. Now I open the bracket and my minus go inside. So we get x square minus 2x minus 1. क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस है उसका भी माइनस होगा और ये दोनों वैल्यू फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2. So ये हो गया हमारा f minus g of x का आंसर. Similarly, we get f g of x is equal to fx into gx. By the definition of multiplication of two real functions, we get fx into gx. Now put the values of fx and gx in this equation or here. That means x square into in a bracket 2x plus 1. Now x square go inside in the bracket and we get the result 2x cube plus x square. This is from result 1 and 2, 1 and 2, and this is your multiplication of two real functions. And similarly the last one is f by g of x is equal to fx by gx by the definition of quotient of two real functions where gx is not equals to 0 because of gx is in a denominator and we know that the denominator must be non-zero because of if gx is equal to 0 then we get an infinitive. Okay, so which is not possible. Now put the values of fx and gx in this equation. We get x square divided by 2x plus 1 where x is not equals to minus half because of ये मैंने क्यों लिखा स्टूडेंट्स, कोई कह सकता है यहाँ पे मैं x इज इक्वल टू माइनस हाफ नहीं ले सकता. क्यों नहीं ले सकता उसका आंसर मुझे चाहिए, बोलो कैसे. सो क्यों नहीं पुट कर सकता, क्योंकि यहाँ सपोज मैंने माइनस हाफ ले लिया तो 2 कैंसिल होगा तो फाइनल मुझे -1 मिलेगा और +1. दैट मीन्स ये टर्म 0 हो जाएगा. बराबर, मैंने अभी बोला कि हमारे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए इसलिए ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई किया और ये वैल्यू कहाँ से आई तो के फ्रॉम 1 and 2 एंड दिस इज योर लास्ट एंड फाइनल आंसर f by g of x. बस स्टूडेंट्स इतना ही करना है. सेम ऐसे एग्जांपल हमारे पास लास्ट 2 है. बराबर, सेम ऐसे ही करना है. समझ में आ गया स्टूडेंट्स. और खास जो हमारा फोर्थ होगा f by g of x, वहां पे खास जो भी रिजल्ट है x की वैल्यू जो हम नहीं ले सकते वो तो खास आपको मेंशन करना है. समझ में आ गया. बस ऐसे ही इसी मैनर में आपको एग्जांपल्स करने हैं. समझ में आ गया स्टूडेंट्स, इजी है ना. ओके गुड. सो द लास्ट सेकंड sum of our chapter is example number 17. Let fx is equal to square root x and gx is equal to x be real functions defined over the set of non-negative real numbers. Find f plus g of x, g minus x, f minus g of x, f gx and f by g of x. यहाँ पे हमें 2 रियल फंक्शंस दिए हैं डिफाइंड ओवर द सेट ऑफ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. मतलब हमारे जो रियल नंबर्स है वो नॉन नेगेटिव है. बराबर, मतलब नेगेटिव नहीं है. बराबर. सो x इज अ नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. उसके ऊपर हमारा फंक्शंस दोनों फंक्शन डिफाइन हुए हैं. सो हमें 4 रिजल्ट फाइंड करना है जो हमने अभी प्रीवियस एग्जांपल में फाइंड किए वही. सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों फंक्शन है उसको मैं मेंशन कर देता हूँ. हियर fx is equal to square root x and gx is equal to x be given real functions. नंबर 1 f plus g of x is equal to fx plus gx. सिंपल, हमें क्या करना है जस्ट fx और gx की वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट ही करनी है. मतलब क्या मिलेगा तो स्क्वायर रूट x प्लस x. सो ये हो गया हमारा एडिशन फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2. सिमिलरली सब्ट्रैक्शन मतलब स्क्वायर रूट x माइनस x. समझ में आ रहा है स्टूडेंट, सिंपल है ना. फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2 मतलब यहाँ पे fx माइनस gx, fx is equal to square root x and gx is equal to x. That means square root x minus x. अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू रियल फंक्शंस. तो एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स डॉट जी एक्स. मतलब एफ एक्स की वैल्यू हमारी एक्स स्क्वायर रूट एक्स और यहाँ पे एक्स है. अब
ये जो स्क्वायर रूट एक्स है ना उसको मैं एक्स इज टू हाफ लिख सकता हूँ। स्क्वायर रूट एक्स मीन्स एक्स इज टू हाफ, और यहाँ पे एक्स इज टू 1 है, मतलब बेस सेम है, तो जो इंडाइसिस है मतलब जो पावर्स है उसके एडिशन होगा। सो 1 प्लस हाफ दैट मीन्स 3/2 मिलेगा मुझे। सो एक्स इज टू फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे 3/2। ये आपने आगे भी ये ऐसा देखा होगा, आगे आई थिंक 9th-10th स्टैंडर्ड में आ गया होगा कि अगर बेस सेम हो बराबर तो इंडाइसिस का क्या होगा, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है बराबर। तो यहाँ पे हाफ है रेज टू और यहाँ पे 1 है, मतलब हाफ प्लस 1 दैट मीन्स 3/2। तो एक्स इज टू 3/2 और यहाँ पे कैसा है तो फ्रॉम रिजल्ट 1 and 2। सो ये हो गया आपका product of two real functions or multiplication of two real functions. Now the last one is quotient of two real functions, that means f by g of x is equal to fx by gx by the definition of quotient of two real functions where gx is not equal to 0. ये रिजल्ट यहाँ पे कंपलसरी लिखते हैं स्टूडेंट्स। ओके, अभी fx की वैल्यू क्या है तो स्क्वायर रूट x है और gx की वैल्यू x है, और यहाँ पे x इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि x डिनोमिनेटर में है। कहाँ से है वैल्यू हमारे पास फ्रॉम 1 and 2। अभी यहाँ पे x इज टू हाफ है और ये x इज टू 1 है। अब x इज टू 1 मतलब ये ऊपर जाएगा तो x इज टू -1 होगा, मतलब ये है। इसको मैं साइड पे लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा तो x इज टू -1 लिखूंगा बराबर। यहाँ पे x इज टू हाफ है और यहाँ पे x इज टू -1 होगा। अगर इसको मैं डिनोमिनेटर से मैं न्यूमरेटर में ले जाऊंगा तो हमारा जो पावर होगा वो क्या होगा नेगेटिव बराबर। तो यहाँ पे x इज टू -1 और यहाँ पे हाफ। अब सभी को पता है कि जो हमारा फुल होता है बराबर कंप्लीट, एक में से आधा जाता है तो कितना रहता है आधा रहता है, मतलब 100 में से 50 कट होगा तो कितना मिलेगा 50 मिलेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक्स इज टू हाफ है और ये एक्स इज टू -1 है बराबर। ये दोनों का सब्सट्रैक्शन करें तो हमें क्या मिलेगा तो एक्स इज टू हाफ -1 बराबर, और इसका करेंगे तो आपको क्या मिलेगा तो एक्स इज टू -हाफ मिलेगा बराबर। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर एक्स इज टू -हाफ। सो दिस इज योर आंसर ऑफ क्वेश्चन ऑफ टू रियल फंक्शंस। समझ में आ गया स्टूडेंट, सिंपल ही है बराबर। तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 17। अभी हम लास्ट सम इसके बाद आएगा। ओके, सो द लास्ट सम ऑफ आवर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन इज miscellaneous exercise second, 7th sum. Let f comma g from R to R be defined respectively by fx is equal to x plus 1 and gx is equal to 2x minus 1. Find f plus g, f minus g and f by g. स्टूडेंट्स सिर्फ 3 रिजल्ट ही हमें फाइंड करना है। ये मैंने एडिशन दिया है, मतलब हमारा जो 4th रिजल्ट बाकी है वो भी मैंने यहाँ पे लिख ही दिया, मतलब फाइंड कर ही देते हैं। चलो, तो सबसे पहले हियर द फंक्शंस f comma g from R to R be defined by fx is equal to x plus 1, gx is equal to 2x minus 1. I give it result number 1 and 2. Now the first one, f plus g of x is equal to fx plus gx. Put the values of result 1 and 2 in fx plus gx. We get x plus 1 plus 2x minus 3 from 1 and 2. So x plus 2x that means 3x and 1 minus 3 that means minus 2. So ये हो गया हमारा f plus g of x का आंसर। Similarly f minus g of x is equal to fx minus gx, x plus 1 minus bracket में 2x minus 3. Now minus go inside the bracket, we get minus is plus, convert. The minus sign is converting to plus sign. That means x plus 1 minus 2x plus 3. So इसका आंसर क्या मिलेगा तो x minus 2x that means minus x मिलेगा, और 1 plus 3 is equal to 4. That means 4 minus x. ये क्या हो गया हमारा f minus g का आंसर। Similarly the quotient of two real functions, that means f by g of x is equal to fx by gx, where gx is not equals to 0. Put the values of 1 and 2 in this equation. We get x plus 1 divided by 2x plus 3, where x is not equals to minus 3 by 2. Because of if you put the value of x is equal to minus 3 by 2 here, then we get denominator is infinite. That denominator is 0. That means we get an infinite answer, which is not possible. So this is your the quotient of two real functions answer. And similarly, the additional question is, or additional result we have to find is fg of x is equal to fx into gx. That means 2x plus 1, 2x plus 3. If you simplify these two brackets, then you get 2x square plus 5x plus 3. Then you get the answer 2x square plus 5x plus 3. So ये हो गया हमारा complete। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है, ऑफिशियली अनऑफिशियली आप जैसे भी बोल सकते हो, सो हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है बराबर। आई होप कि आपको पूरे चैप्टर्स में समझ में आ गया होगा बराबर ना। सो
आशा रखता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। सो यहाँ पे हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। अभी हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 लीनियर इनइक्वालिटीज, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तब तक के लिए थैंक यू। अपना ध्यान रखिए, कहीं मत जाइए। स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी। ओके, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू।